Hello friends, welcome back to EduSet classes. In our map based exercise, we will cover the Pacific Ocean with all its important islands and also why Indo-Pacific is important. In brief, we will also cover Ring of Fire, how it is formed and some of the important international groupings like Asia Pacific Economic Cooperation, Trans-Pacific Partnership, which was later converted into the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership after the withdrawal of USA, RCEP, then Quad grouping. All these are very much important to enhance cooperation in the Indo-Pacific region. So first, Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean. It covers approx one third of the Earth's surface, and it is of the triangular shape. In north, here it is Bering Strait, which connect it with the Arctic Ocean. Okay, in south it is connected by the Southern Ocean, and in both sides it connected by the Atlantic Ocean and then Indian Ocean. Okay, and it is found both in the western and eastern hemisphere. In the western side, here this is Asia and Australian continent, and eastern side it is the American continent. So it is bounded by the Asia and Australian continent in the west and American continent in the east. It is the deepest ocean and the deepest trenches are found here. Its depth is approx 4,000 meter. Okay, then Pacific Ocean has many marginal seas like South China Sea, Sea of Japan, then East China Sea, Philippine Sea, Coral Sea, Tasman Sea, all these are in the Pacific Ocean. Pacific Ocean is a plate on Pacific plate. Pacific Ocean is placed on the Pacific plate, which is the biggest oceanic plate. Okay, there are two plates, oceanic plate and continental plate. So Pacific Ocean is on the Pacific plate, and it is surrounded by the Eurasian plate, North American plate, South American plate, Indo-Australian plate. These are the major plates. Cocos plate and Nazca plates are the minor plates. Whole Pacific Ocean is on the convergent boundaries. That's why it is shrinking approx 2.5 centimeter per year on three sides. So it is shrinking. Pacific Ocean is shrinking because of the convergent boundary. In contrast, the Atlantic Ocean is rising in size. There are several trenches, and these are, if we divide in three, like in the north and central Pacific, then this is Kuril Trench, this is Aleutian Trench, then Java Trench. Okay, Mariana Trench, Philippines Trench is in the western and southwest part. Okay, this is Diamantina Trench, then Tonga Trench and Kermadec Trench. Here you can see Kermadec Trench. These are in the south, and east में Middle American Trench, Peru Chile Trench, and these are the important trenches in the South China. In the Indo-Pacific Pacific Ocean. Okay, पैसिफिक ओशियन में बेसिकली तीन मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं. दीज आर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया. माइक्रोनेशिया में जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, दीज आर मैरियाना आइलैंड, देन मार्शल आइलैंड, किरिबती आइलैंड एंड पलाऊ आइलैंड. ओके, सो दीज आर इन दी माइक्रोनेशिया. पॉलिनेशिया में तुवालू, समोया, कुक आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड, ऑस्ट्रल आइलैंड and then Tonga Island, Kermadec Island. These are in the Polynesia. And Solomon Island, Santa Cruz, Vanuatu, Fiji, New Caledonia. These are in the Melanesia. So
Try to remember the name, that is the Micronesia. They can directly ask Micronesia, Polynesia and Melanesia कौन सा ओशियन में है. और ऑप्शंस आर अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन. तो ऑल दीज आर इन दी पैसिफिक ओशियन. देन मार्शल आइलैंड, किरिबती आइलैंड, मैरियाना एंड पलाउ इज इन दी माइक्रोनेशिया. देन मेलानेशिया में सोलोमन आइलैंड है, वेनुआटू है, देन फिजी है, न्यू कैलेडोनिया है. These are in the Melanesia. And then Samau, Tuvalu, Cook Society, Austral. These are in the Polynesia. अब पैसिफिक ओशियन में आप लोगों ने एक रिंग ऑफ फायर रीजन के बारे में सुना होगा. सो दिस इज रिंग ऑफ फायर. ये जो रीजन है, दिस इज रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर एक ऐसा रीजन होता है वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर. तो ऐसा एरिया जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यूसली होती रहती है. यहाँ अप्रॉक्स 450 प्लस वॉल्केनोस हैं. तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. और 450 वॉल्केनोस में 3 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस भी यहाँ पे मिलते हैं. तो ये अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर इन द रिंग ऑफ फायर रीजन में होते हैं. और 80% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक भी यहाँ पर होते हैं. तो ये अर्थक्वेक के टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंटिन्यूसली होती रहती है. इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्केनिक एरप्शंस आते रहते हैं और अर्थक्वेक होता रहता है. ओके. एंड ये रिंग ऑफ फायर बनता कैसे, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दिस. एक तो 2 प्लेट्स होती हैं. एक ओशियानिक प्लेट होती है, देन कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है. कॉन्टिनेंटल प्लेट थिक होती है, ओशियानिक प्लेट थिन होती है. तो जब ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे ये जो सबडक्शन, इस जो जोन होता है जहाँ पे दोनों प्लेट्स मिलती हैं, दैट इज़ द सबडक्शन जोन बोलते हैं. और इसको ही ऐसे ही रिंग ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं. देन और अर्थक्वेक आता है. सो दैट इज़ द इट इज़ अ रिजल्ट फ्रॉम द सबडक्शन ऑफ ओशियानिक प्लेट लाइट अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, एंड द एरिया वेयर दीज टेक्टोनिक प्लेट्स मीट इज कॉल्ड द सबडक्शन जोन. Okay. Then why Pacific Ocean region is important? So Pacific Ocean is important because uh, to maintain regional stability के लिए important है. Then चाइना का कंटिन्यूसली प्रेजेंस बढ़ रहा है इस एरिया में. चाइनास इंक्रीजिंग एक्टिव प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन रीजन एज वेल एज इन द इट्स एफर्ट्स टू एक्सपांड द जियो पॉलिटिकल रीच इन द एशिया एंड बियॉन्ड बाय द यूज़ ऑफ द ट्रेड एंड मिलिट्री. तो उसको काउंटर करने के लिए जो चाइनीज़ प्रेजेंस जो है उसको काउंटर करने के लिए ये एरिया इम्पॉर्टेंट है. Then for freedom of navigation, adherence to rule based order and stable trade environment के लिए भी ये इंडो पैसिफिक रीजन इज़ important. Apart from that, for the free sea and air connectivity, this area is important. Pacific Ocean is important. Now important regional groupings. These are first is Asia Pacific Economic Cooperation. Asia Pacific Economic Cooperation is an intergovernmental forum. It is a 21 Pacific Rim member economies हैं इसमें. एंड इट वॉज established in 1989. सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है. इट्स मेन पर्पज टू प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज. ओके. नेक्स्ट इज these are the countries of APEC. these are रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया. चाइनीज़ की जो ताइपी है वो भी है, हांगकांग भी है. बिकॉज इसमें इकोनॉमीज़ की बात की है तो इसमें हांगकांग, जबकि हांगकांग भी इसका पार्ट है. फिलीपींस, वियतनाम, देन थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनी. ओके. पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, Canada, USA, Mexico, Peru, Chile, all these are the member of APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Then Trans-Pacific Partnership 2016 में आया था. ओके. यूएस ने विड्रॉ कर लिया ट्रांस-पैसिफिक पार्टनर से. यूएस के विड्रॉ होने के बाद ये क्या बन गया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ओके, साइंड हुआ था ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू लोअर द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं उनको कम करना है, बट लेटर इसको विड्रॉ कर लिया। इसमें कौन कौन सी 12 कंट्रीज़ थी? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, पेरू, चिली, जापान, वियतनाम, ब्रूनी, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बट यूएस के विड्रॉ करने के बाद इसमें 11 मेंबर्स बचे एंड दिस इज साइंड इन द जो CPTPP जो था, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। 11 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इसमें 2018 में सैंटियागो चिली में इसको साइन किया गया था। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया इन द वर्ल्ड बाय द GDP आफ्टर नाफ्ता एंड यूरोपियन यूनियन. It come into force for the initial 6 ratifier in December 2018. नेक्स्ट इज क्वाड ग्रुपिंग। क्वाड ग्रुपिंग में 4 मेंबर्स हैं। इंटरगवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। 2017 में इसको रीस्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट इसमें इनिशिएशन 2007 में हुआ था। क्वाड्रिलेटरल अलियंस रिवाइव्ड एट द मनीला फिलीपींस में इसको फिर से रिवाइव्ड किया गया और इसमें इसको एज अ नाटो ऑफ एशिया भी बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द चाइनीज़ इकोनॉमिक जो प्रेजेंस बढ़ रहा है चाइना का वो एंड मिलिट्री पावर बढ़ रही है उसको काउंटर करने के लिए। इसके अलावा जो फिपिक है ये इंडिया का इनिशिएटिव है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है। 2014 में प्रपोज की गई थी इंडिया के द्वारा। इसमें 14 पैसिफिक आइलैंड के ही नेशंस हैं, लाइक फिजी हो गया, ऐसे अलग अलग, किरीबती हो गया। फर्स्ट समिट इसका फिजी में हुआ था एंड नेक्स्ट सेकंड जयपुर इंडिया में हुआ था, ओके। That is a pan Pacific island e-network to close the Pacific distance. इसमें 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं, फिजी, कोक आइलैंड, किरीबती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नुआरू, नन्यू, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, समोया, सोलोमन आइलैंड, टोंगा आइलैंड, तुवालू आइलैंड, वेनुआटू आइलैंड, ये इसके बेसिकली मेंबर्स हैं। So that is it for the day friends. I hope you like the video. Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye.